नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तमिलनाडु में तारीखी सियासी तब्दीली, विजय ने वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया। नई हुकूमत ने काम किया शुरू। तेलंगाना के लिए 9,500 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की शुरुआत। पीएम मोदी ने हैदराबाद में मुख्तलिफ कामों का रखा संगे बुनियाद। योगी हुकूमत की काबीना में तोसी, इंतखाबात से कबल बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली तेज। 6 नए वज़रा को काबीना में किया गया शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने जीवन आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स को तकर्रुरी नामे पेश किए। ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तलकीन। दोहा के करीब तजारती जहाज पर हमला, ड्रोन या मिसाइल हमले से आग भड़की, कोई जानी नुकसान नहीं। पुतिन का ईरान के एटमी पॉलिसी पर बड़ा बयान, कहा तेहरान को पुरअमन जौहरी तवानाई का मुकम्मल हक हासिल। और अब खबरों की तफसील। चेन्नई में टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय ने एक शानदार तकरीब में तमिलनाडु के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। इसके साथ ही रियासत में 60 साल बाद पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा किसी और जमात की हुकूमत कायम हो गई है। हलफबरदारी की तकरीब में 9 वज़रा ने भी हलफ लिया, जबकि गवर्नर ने वज़ीर आला और काबीना को हलफ दिलाया। विजय ने अपने पहले खिताब में कहा कि इनकी हुकूमत में सिर्फ एक ही ताकत का मरकज़ होगा और वो खुद होंगे। इन्होंने शफाफ, सेकुलर और समाजी इंसाफ पर मबनी हुकूमत का वादा किया। नई काबीना में नौजवान और तजुर्बेकार रहनुमाओं का इंतजाज शामिल है। हुकूमत ने तमाम महकमों के ऑडिट और ज़ीरो इंटरफेरेंस पॉलिसी का ऐलान भी किया। विजय के हलफ बर्दारी तकरीब में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शरीक हुए। इंडिया नाटिन ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும். It's a people victory, particularly Tamil Nadu women and youth victory. Definitely our leader and our all ministers will give transparency government. We'll work for the all minority brothers and sisters. We'll work for the development, particularly social justice and secularism. Definitely we will change. And our leader has mentioned we'll publish a white paper. Definitely we'll do a complete audit on all our departments, and we'll publish a white paper on every department, what is there, what is not there, and what need to be focused and what need to be prioritized. Definitely only after clear white paper is published. See, our intentions are very pure and good. So whatever comes to our attention, we will deliver this governance in a clean, transparent and corruption-free manner. So you will see a difference. Definitely you will see a difference how our TVK is going to govern the state. Our CM has given detailed list of activities. We'll probably take into challenge into the job everything. So CM has given some commitment, some orders will be obeyed and followed up. டிரான்ஸ்பரன்சி தான், பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தொடங்கி, பஞ்சாயத்தில் தொடங்கி, கார்பரேஷனில் தொடங்கி, ஒரு முனிசிபல் கவுன்சிலில் தொடங்கி, மாண்புமிகு அமைச்சர் வரைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சியை நம்ம கொண்டு வரணும். அப்புறம் நாம பேசுறதை விட மக்கள் பேசணும், அதை நம்ம கேட்கணும். அந்த கிரீவன்சஸ்க்கு சரியான சொல்யூஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணணும். இது ஒரு பெரிய ஒரு இலக்கோட நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். நல்ல ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ஒரு பிளானோட வந்திருக்கிறோம். unbelievable, because none other state would even have such kind of a cabinet minister. I would say nobody would even give us such a chance, I would say. Yeah.
वज़ीर आला का ओहदा संभालते ही तमिलनाडु के नए वज़ीर आला विजय ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बनने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही इन्होंने 3 अहम फाइलों पर दस्तखत किए। पहला फैसला रियासत के तमाम घरेलू सार्फिन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने से मुताल्लिक है। दूसरा फैसला ख़वातीन की हिफाजत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स के क़याम का, जबकि तीसरा फैसला मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुसूसी निज़ाम की तश्कील से मुताल्लिक है। टीवीके के कानून साज एमवी कृपैया ने आज तमिलनाडु के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ लिया। लोक भवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में कृपैया को गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने हलफ दिलाया। वज़ीर आला जोसेफ सी विजय भी इस वक्त मौजूद थे। कृपैया ने AIADMK छोड़ने के बाद टीवीके में शमूलियत इख्तियार की थी। इस दौरान तमिलनाडु कानून साज असम्बली का पहला इजलास 11 मई की सुबह 9:30 पर चेन्नई के सेक्रेटरीट के असेंबली चैम्बर में तलब किया गया। इस रोज़ 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। तमिलनाडु कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मंगल यानी 12 मई को सुबह 9:30 बजे होगा। நம்பிக்கையும் பற்றுதலுமாகி கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொண்டுள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன்। तमिलनाडु में सियासी माहौल उस वक्त गर्म हुआ जब रियासत के साबिक वज़ीर आला MK स्टालिन ने रियासत के कर्ज के हवाले से एक बयान दिया। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तमिलनाडु का कर्ज काबिल इजाज़त हद के अंदर रहता है। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब नए वज़ीर आला विजय ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने रियासत को 10 लाख करोड़ के बड़े कर्ज के साथ छोड़ा है और ख़जाने को खाली कर दिया है। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हुकूमत के पास वसाइल की कमी नहीं है, बल्कि इसे अवाम में तकसीम करने की सलाहियत और मर्जी की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि फरवरी के बजट में रियासत की माली सूरत-ए-हाल पहले ही वाज़ेह कर दी गई थी। विजय के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि यह कहना मुकम्मल मालूमात के बगैर दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में टीवीके की शानदार कामयाबी पर पार्टी को मुबारकबाद दी। इन्होंने पार्टी सरबराह विजय को वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर नेक ख्वाहिशात भी पेश की। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तमिलनाडु के अवाम ने अपने वोट के जरिए अपनी उम्मीदों, एतमाद और जमहूरी ख्वाहिशात का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि विजय की क़यादत में तमिलनाडु तरक्की, अवामी फलाह और जामे तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। ममता बनर्जी ने नई हुकूमत के लिए कामयाबी और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम करने की दुआ भी की। हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में PM मोदी ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मंसूबों की शुरुआत की। वज़ीर आज़म ने महबूब नगर तक नेशनल हाईवे 167 को 4 लेन बनाने और संगारेड्डी ज़िले के ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ कई अहम मंसूबों का संग बुनियाद रखा। बताया गया है कि इन मंसूबों से सनअती तरक्की को फ़रोग़ मिलने, रोज़गार के मौक़े पैदा होने और बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के अवाम को तरक्की और मरकज़ की तरफ से ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर तेलंगाना तरक्की करेगा तो भारत भी तरक्की करेगा। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि मरकज़ी हुकूमत रियासत के हर ख़ानदान के ख्वाब पूरे करने के लिए मज़ीद तेज़ रफ्तारी के साथ काम जारी रखेगा। का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के MSMEs, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं
कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला ने इन तरक्याती मंसूबों की शुरुआत को विकास उत्सव करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये मंसूबे तेलंगाना को तरक्की की नई राह पर आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क की कुल आबादी में तेलंगाना का हिस्सा 3% से भी कम है, लेकिन मुल्क की आमदनी में काफ़ी ज़्यादा ताउन किया जाता है। सीएम रेवंत रेड्डी ने जोर दिया कि रियासत को मुनसिफाना हिस्सा मिलना चाहिए। ये एक केंद्र सरकार के कार्यक्रम नहीं, ये विकास उत्सव है। ये विकास उत्सव तेलंगाना राज्य को इस देश में आगे जाने के लिए ये विकास उत्सव हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए ये विकास उत्सव कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश में हम सरकार बनाए, इस राज्य में हमारा पहला देश, बाद में जनता, तीसरा दल, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत घोषण पत्र निकाला, उसी दिन हम लोग ये तय किए विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए हम तेलंगाना राइजिंग 2047 हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किताब की रस्मी इजरा तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 1947 के बाद पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के जरिए जो भी तब्दीलियां लाई गई, इन्हें बगैर एक कतरा खून बहाए कबूल किया गया। अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मुल्क में आईनी और जमहूरी तरीके से होने वाली तब्दीलियों को अवाम ने हमेशा कबूल किया। इन्होंने कहा भारत दुनिया की सबसे मजबूत जमहूरियत में शामिल है, जहाँ कानून और आइन के दायरे में रहकर फैसले किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, और आज इस सभागार में विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हुज हु जो यहाँ पर उपस्थित है, वो सभी को मैं तुषार मेहता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। बीजेडी रुकने पार्लियामेंट सुल्तान देव ने सुवेंदु अधिकारी के मगरबी बंगाल का वज़ीर आला बनने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुल्तान देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बदउनवान शख्स को वज़ीर आला कैसे बना सकती है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इससे साबित होता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन पार्टी बन चुकी है, जहां दूसरी जमातों से आने वाले रहनुमाओं पर लगे इल्ज़ामात इक़्तिदार में आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा बीजेपी वालों को जाके पूछिए तो शुभेंदु अधिकारी का वीडियो कौन डाले थे? भारतीय जनता पार्टी के अपने ही आईडी में डाला गया। मेरा आईडी जाके देखिए ना, मैंने खुद डाला है फेसबुक आईडी में कि वो वीडियो अभी डिलीट कर दिए। कौन सा वॉशिंग मशीन है वो? कौन सा वॉशिंग मशीन है जो होम मिनिस्टर ने भी उसको बोला था कि ये इतना करप्ट है, और शुभेंदु अधिकारी का 5 लाख का जो रिश्वत ले रहे थे वो वीडियो भी उन लोगों ने अपने ये में ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री भरे सभा में भी बोले, देखा किस तरह से पैसा लिए और ऐसे रख लिए पॉकेट में 5 लाख रुपए, ऐसे हैं। तो फिर इस तरह के आदमी को कैसे आप बना लिए? कैसे आप बनाए? कौन सा वॉशिंग मशीन में आप डाल के उनको पूरा धुलाई कर दिए? मैं इसीलिए बोलते हूँ हिमंत बिश्व।
उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की काबीना में तोसी कर दी गई है। 2027 असेंबली इंतखाबात से कबल होने वाली इस तोसी में 6 नए वज़रा को शामिल किया गया, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे और अजित पाल समेत कई अहम नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलकत को तरक्की देकर काबीना में जगह दी गई। सियासी माहिरीन के मुताबिक योगी हुकूमत की ये काबीना तोसी मुकम्मल तौर पर इंतखाबी हिकमत अमली को सामने रख कर की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके जरिए पसमानदा तबकात, दलित समाज और मुख्तलिफ इलाकाई बरादरियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। श्रीनगर में आज एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीवन आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स को तकर्रुरी नामे पेश किए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जवानों से खिताब भी किया और इन्हें ईमानदारी, फर्जशनासी और कौम की खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तलकीन की। डिवीजन के 85 पुरुष और महिला कांस्टेबल जो विभिन्न जिलों के हैं, विभिन्न अंगों के हैं, न्याय सांकेतिक रूप से। दिल्ली के करोल बाग फायरिंग मामले में मतलूब 2 मुबैना शूटरों को कमला मार्केट इलाके में पुलिस के साथ मुख्तसर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त दीपांशु उर्फ साहिल, बाउंसर और अविनाश के तौर पर हुई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों मुलजिमान करोल बाग थाने में दर्ज फायरिंग के एक मुकदमे में मतलूब थे और काफ़ी अरसे से गिरफ्तारी से बच रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस टीम ने जाकिर हुसैन कॉलेज के करीब तुर्कमान रोड पर जाल बिछाया, जहां दोनों एक स्कूटर पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा देकर मुलजिमान ने स्कूटर और दरख्त के आड़ लेकर पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान ने 4 राउंड फायर किए, जिनमें एक गोली इंस्पेक्टर रोहित कुमार के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों मुलजिमान के पैरों में गोलियां लगी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए इस करोल बाग वाले केस में 2 ऐसे क्रिमिनल्स थे जो बहुत ही डेस्परेट थे और जिनके ऊपर नॉर्थ जिले के सराय रोहिला की रॉबरीज भी थी और हमारे यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की थी करोल बाग वाले केस में। वो 2 क्रिमिनल्स थे, साहिल और अविनाश। हमें ये पता चला कि इन दोनों के ऐसे अब इरादे हैं कि जो दूसरा ग्रुप है उस पर ये फिर से अटैक करना चाह रहे हैं और ये उस करोल बाग वाले इंसिडेंट के बाद यहाँ से फरार हो गए थे। हमारी टीम ने इनको काफ़ी पीछा किया, डिफरेंट स्टेट्स में इनके पीछे गए जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली इनके हाइड आउट्स के बारे में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये वापस आके किसी भी दिन दोबारा दूसरे गैंग पे अटैक कर सकते हैं या उनके। बिहार के अरवल जिले में NH 139 पर स्कूल वैन और ऑटो रिक्शा के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हुए। यह हादसा नितबिघा गांव के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ऑटो रिक्शा में रोजाना मजदूरी करने वाले अफराद सवार थे, जो कि माँ का खेड़ा कंस्ट्रक्शन प्लांट में काम करने जा रहे थे। इस दौरान सामने से आने वाली स्कूल वैन से इनकी टक्कर हुई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो रिक्शा बुरी तरह से तबाह हो गया और कई मुसाफिर इसके अंदर फंस गए। इमदादी कार्रवाई के दौरान ग्रेडर मशीन की मदद से जख्मियों को बाहर निकाला गया। 8 लोग आए थे, जिसमें 2 लोग ब्राउड डेड थे और कुछ सीरियस हैं। उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट करने के बाद उनको रेफर किया जा रहा है। 2 लोग को रेफर किया जा रहा है, बाकी का यहाँ कंजर्वेटिव। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। उर्विल पटेल ने आज चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में महज 13 गेंदों में संगे मील को अबूर कर लिया। पटेल ने यशस्वी जायसवाल के कायम करदा रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला दाएं हाथ के खिलाड़ी ने नंबर 3 बैटिंग की और लखनऊ की बॉलिंग अटैक पर एक ज़बरदस्त हमला किया। इन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरी में 1 चौका और 7 छक्के लगाए। हंता वायरस से मुतासरा नीदरलैंड का परचम बरदार क्रूज MV हुंडई स्पेन के शहर टेनराइफ के साहिल पर पहुंच गया। ताम हुक्काम के मुताबिक जहाज को बंदरगाह पर लाने के बजाय साहिल से दूर लंगर अंदाज किया गया है। हंटा वायरस से मुतासिरा डच परचमबरदार क्रूज MV होंडियस स्पेन के शहर टेनेराइफ के साहिल पर पहुंच गया।
एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र जहाज को बंदरगाह पर लाने की बजाय साहिल से दूर लंगरअंदाज रखा गया है। हुकाम ने वाजे किया है कि अवाम को खतरा इंतहाई कम है, क्योंकि जहाज से उतरने वाले मुसाफिरों और अमले का मकामी आबादी से कोई राब्ता नहीं होने दिया जाएगा। स्पेन के आला सेहत हुकाम और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस की रास्त निगरानी में क्रूज शिप से मुसाफिरीन के इनखला किया जा रहा है। That's why I'm here to witness that, and I know we will do this together, and WHO will support in any way possible. We just landed now. We came straight here to check the preparations in the port. Of course, we will do everything tomorrow to make the operation a success. And I know there will be many operations flights. We estimate that there could be around 6 for EU related and also around 4 for non-EU. And I know Tenerife is ready, prepared, and I know Spain is ready and prepared. And I would like to assure our support as well, and that's why I'm here. मुसाफिरों को छोटी कश्तियों के जरिए साहिल तक मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उनकी तिब्बी जांच के बाद मुख्तलिफ मुमालिक के लिए खुसूसी परवाजों के जरिए रवाना किया जाएगा, जबकि स्पेन शहरियों को मकामी तौर पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। WHO ने कहा है कि जिस क्रूज जहाज पर हंता वायरस फैलने का मामला सामने आया है, उसमें सवार तमाम अफराद को इंतहाई खतरे वाला राब्ताकार समझा जाना चाहिए। WHO में वबाई अमराज और रोकथाम के शोबे की डायरेक्टर मारिया वॉन करहोफ ने कहा कि जहाज पर मौजूद हर फर्द को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट माना जा रहा है। फिलहाल जहाज पर किसी में भी बीमारी की अलामात जाहिर नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाज से उतरने वाले तमाम मुसाफिरों और अमले की 42 दिनों तक निगरानी और तिब्बी मुआयना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आम लोगों और स्पेन की कैनरी आइलैंड्स के बाशिंदों के लिए खतरा फिलहाल कम है। इस क्रूज जहाज पर 2 मई को पहली बार सांस की शदीद बीमारी के केसेस सामने आए थे। उस वक्त जहाज पर 147 मुसाफिर और अमला मौजूद था, जबकि 34 अफराद पहले ही जहाज से उतर चुकी थी। कबल वक्त उतरने वाली मुसाफिरीन की पता लगाने की कोशिश की जा रही है और मुतासिरा अफराद के राब्ते में आने वालों की जांच की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक हंता वायरस उमूमन चूहों की फुजली या पेशाब के जरिए इंसानों में मुंतकिल होता है। इसकी अलामात 1 हफ्ते से लेकर 8 हफ्तों तक जाहिर हो सकती हैं, जिनमें फ्लू जैसी कैफियत से लेकर शदीद सांस की बीमारी तक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हंगरी के पार्लियामेंट ने पीटर मगियार को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया, जिसके साथ ही अमेरिका के हामी विक्टर ऑरबान का 16 साला दौर का खात्मा हो गया है। अमेरिका में अप्रैल में होने वाले आम इंतखाबात के बाद कायम होने वाले नए पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में पीटर के हक में 140 वोट डाले गए, जबकि 54 अरकान ने मुखालफत में वोट डाला। मगरबी एशिया के समंदरी इलाके में एक रेल जहाज पर हमले का वाक़या पेश आया। बरतानवी हुक्काम के मुताबिक ये हमला कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तजारती जहाज बड़ी मिकदार में कंटेनर्स लेकर सफ़र कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम ड्रोन या मिसाइल के जरिए जहाज को निशाना बनाया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने मियामी में कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से अहम मुलाकात की, जिसमें ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ईरान के साथ जंगबंदी और आइंदा तफसीली मुज़ाकरात के लिए एक मुख्तसर मुफाहमती याददाश्त पर भी गौर किया गया। यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल के ममनुआ जोन में ड्रोन के गिरने की वजह से इलाके की जंगल में आग भड़क उठी। ये आग जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन गिरने के बाद शुरू हुई। हुक्काम ने इलाके में सफ़ेद धुएं देखे, बादल उठते दिखाई दिए, ताहम ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक बताई जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई इस्तेमाल करने का मुकम्मल हक हासिल है। उनका कहना था कि ईरान यूरेनियम को हथियारों में तब्दील करने का कोई इरादा नहीं रखता। रूस या IAEA को कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये साबित हो कि तेहरान एटमी हथियार तैयार करना चाहता है। टीवी के सरबराह विजय ने आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। इस तरह तमिलनाडु की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। DMK और AIADMK जो गुज़िश्ता 6 दहाइयों से रियासत पर हुक्मरानी कर रहे थे, अचानक शिकस्त से दो चार हो गए। अदाकार विजय की क़यादत वाली TVK ने असेंबली इंतखाबात में
हलचल मचा दी है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। तमिलनाडु द्राविड़ी तहरीकों का गढ़ है। इस सियासी सफर को समझने के लिए हमें दहाइयों पीछे जाना होगा। सन 1949 में ईवी रामास्वामी से पेरियार के अलग होने के बाद अन्नादुरई ने द्राविड़ मन्नेत्रा कड़गम यानी डीएमके पार्टी की बुनियाद रखी। अन्नादुरई सन 1967 में कांग्रेस को शिकस्त देकर पहली बार तख्त पर बैठे। उनकी मौत के बाद करुणानिधि ने बागडोर संभाली। वहां से तमिल सरजमीन पर द्राविड़ पार्टियां उभरने लगीं। डीएमके के शुमाली हिंदुस्तान के तसल्लुत को चैलेंज करने और तमिल ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ बढ़ी। ताहम करुणानिधि के दौर में पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी पैदा हो गए। एआईएडीएमके सन 1972 में उभरी थी। डीएमके में एक अहम रहनुमा और सरकर्दा किरदार रामचंद्रन को पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बाद तमिलनाडु की सियासत मुकम्मल तौर पर डीएमके और एआईएडीएमके के दरमियान तकसीम हो गई। एआईडीएमके ने 7 बार और डीएमके ने 6 बार रियासत की बागडोर संभाली। एक ने जबान के तजुर्बात का इस्तेमाल किया तो दूसरे ने मकबूल स्कीमों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। कौमी पार्टियां एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे लीडरों के साये में अपनी जगह खो बैठी, लेकिन वक्त के साथ खानदानी राज ने डीएमके में जड़ पकड़ी। करुणानिधि के बाद स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन ने बागडोर संभाली तो लोग बेसब्री महसूस करने लगे। इन तवक्कुआत को बदलते हुए कि इक़्तिदार द्राविड़ी पार्टियों के पास होगा, अदाकार विजय की पार्टी टीवीके की शक्ल में रियासत में एक और ताकत बनकर उभरी, जिसकी बुनियाद सन 2024 में रखी गई। उन्होंने 2 साल तक निचली सतह पर खामोशी से जद्दोजहद की। उसके समरात असम्बली इंतखाबात के नताइज की शक्ल में सामने आए। विजय ने अब सन 1977 में अपने सियासी आगाज में एमजीआर के हासिल करदा 30.4% वोटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 34.92% वोट शेयर हासिल करके एक नई तारीख रकम की। इसके अलावा इक़्तिदार मुखालिफ वोटों को तकसीम होने बगैर अपनी तरफ राग़िब करने की हिकमत अमली में भी विजय कामयाब रहे। टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने वज़ीर आला एमके स्टालिन को अपने हल्के में 9000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी, जिसने डीएमके को हिलाकर रख दिया। सन 1996 के बाद स्टालिन की यह पहली शिकस्त है। एआईएडीएमके भी अपना असर दिखाने में नाकाम रही और तीसरे मुकाम तक महदूद रही। अपने सिनेमा ग्लैमर के साथ विजय ने समाजी इस्लाहात और बदगुमानी से पाक हुक्मरानी के अपने नारों से नौजवानों और ख़वातीन को अपनी जानिब मुतवज्जिह किया। हकीकत यह है कि 2.5 करोड़ ख़वातीन वोटरों का खास तौर पर विजय की तरफ मुतवज्जिह होना उनकी जीत का कलीद बन गया। विजय ने एआईएडीएमके में क़यादत की कमी और डीएमके की मुखालिफत का सही इस्तेमाल किया। इसके अलावा ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म ने तमिल लोगों के दिल जीत लिए। शुमाली हिंदुस्तान के तसल्लुत को चैलेंज करते हुए रियासत की तरक्की के लिए नई राहें हमवार करने का विजय का नारा देहातों तक पहुँच गया। जिस तरह सन 1967 में कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी थी, इस तरह द्राविड़ी पार्टी लाइन भी इसी नहज पर चलने लगी है। अगरचे के एमजीआर ने साबित किया था कि सिनेमा और ग्लैमर के मिलने पर सियासत बदल सकती है, तो विजय ने भी साबित किया कि वह कैसी पेशरफ्त कर सकते हैं जो इससे आगे निकल जाए। पूरा मुल्क अब इस बात का बेताबी से इंतजार कर रहा है कि आइंदा 5 वर्षों में विजय की हुकूमत कैसे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।